Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, migration of people. Sometimes families have to shift their homes or move from one place to another. They have to do so for different reasons. Some, like Banjaras, move from place to place in search of pastures for the cattle. They lead a nomadic life and live in tents which can be set up and removed easily. Some people have transferable jobs, so they have to face difficulties in shifting their household goods, arranging for a suitable house and a school for the children in a new place. Some people, like those who work in the army, are transferred to different cities or towns every few years. देखिए, कुछ फैमिलीज जो हैं शिफ्ट करते हैं अपने होम को एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. जैसे कि कुछ बंजाराज होते हैं जो अपने कैटल के लिए पास्चर्स की तलाश में जाते हैं, तो वो एक नोमैडिक लाइफ जीते हैं और अपना टेंट को सेटअप करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं ईजीली. कुछ लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, राइट. कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि जो आर्मी में होते हैं, वो हर साल आपके डिफरेंट सिटीज़ या टाउन्स में आपके क्या होते हैं, हर साल या कुछ साल में ट्रांसफ़र उनकी हो जाती है. द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. तो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उस मूवमेंट को कहा जाता है माइग्रेशन. और जो लोग माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, उन्हें कहते हैं माइग्रेंट्स. The migration of people from one country to another is called international migration. People who migrate from their own country to settle in another country are called immigrants. These immigrants are called immigrants in the country where they settle. कई बार लोग जो होते हैं अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसे इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं. तो जो लोग दूसरे कंट्री में सेटल होते हैं, माइग्रेट करते हैं, उन्हें कहते हैं एमिग्रेंट्स. और इन एमिग्रेंट्स को उस कंट्री में कहा जाता है इमिग्रेंट्स. At the time of partition, many people migrated from Pakistan to settle in India. Similarly, many others migrated from India to Pakistan. These migrants left their ancestral homes and even trade. Government helped them in many ways. Still, they had to struggle hard to set up their new homes and start a living. जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे और बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए थे. तो ये जो माइग्रेंट्स थे अपने एंसेस्ट्रल होम, अपने ट्रेड, ये सब कुछ छोड़ के चले गए थे. गवर्नमेंट ने हेल्प किया था इन लोगों को काफ़ी तरीके से, बट स्टिल इनको अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है. लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अमित's grandfather Gopal Das. When India got partitioned, Gopal migrated from Rawalpindi to Delhi with his family. His family included his father Ram, mother Janki Devi, elder brother Suhas, and younger sister Reema. His uncle Ramanujan stayed back in Rawalpindi. Many years later, Suhas got a job in Dubai and he migrated there with his wife Pooja and sons Gaurav and Puneet. देखिए, ये रावलपिंडी से दिल्ली में शिफ्ट हो गए. इनकी फैमिली में थे इनके फादर, इनकी मदर, इनके एल्डर ब्रदर सुहास और यंगर सिस्टर रीमा. इनके अंकल जो रामानुजन थे वो वहीं रावलपिंडी में रह गए. बहुत सालों के बाद सुहास को एक जॉब मिली दुबई में और वो दुबई में माइग्रेट हो गए अपनी वाइफ पूजा और दोनों बेटे गौरव एंड पुनीत के साथ. Puneet works in an MNC. His wife Mary is a doctor. They have two daughters, Meeta and Julie. Reema got married to Amar. They moved to stay in Kolkata with their son Rohit and daughter Meeta. Rohit is an engineer. He stays in Mumbai. His wife Gayatri is also an engineer. They have a daughter named Pooja. Mehak is a singer. She is still unmarried and stays with her parents. Puneet MNC में वर्क करता है. उनकी वाइफ मैरी डॉक्टर है. उनकी दो डॉटर्स हैं, मीता एंड जूली. रीमा जो है उनकी शादी हो गई है अमर से. वो कोलकाता में रहते हैं अपने बेटे रोहित एंड डॉटर मीता के साथ. रोहित इंजीनियर है, वो मुंबई में रहते हैं. उनकी वाइफ गायत्री वो भी इंजीनियर है. उनकी डॉटर का नाम है पूजा. महक सिंगर है, वो स्टिल अनमैरिड एंड अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. अमित's father has two younger sisters, Neeta and Neena. Neeta is married to Ajay and has two daughters, Priya and Gaurika. They stay in Udaipur. Soon they are planning to migrate to Australia because Ajay has got a job there. Neema is unmarried and lives in Gujarat. She is studying pharmacy there. Thus, we can conclude that people migrate because of many reasons like search for a better job, for higher education, or when they marry. अमित के फादर की दो सिस्टर्स हैं, नीना एंड नीना. नीता जो है उसकी शादी हुई है अजय से. उनकी दो डॉटर्स हैं, प्रिया एंड गौरिका. ये उदयपुर में रहते हैं और अब ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं. ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि अजय को वहाँ पे एक नई जॉब मिल गई है. नीमा जो है वो अनमैरिड है, गुजरात में रहती है. वो वहाँ पे फार्मेसी पढ़ रही है. तो देखिए, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि लोग जो है माइग्रेट करते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से. कोई बेटर जॉब के लिए जाता है, कोई हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो कोई माइग्रेट करता है क्योंकि उनकी शादी हो जाती है. डू यू नो आर्कटिक टर्न इज अ माइग्रेटरी वर्ड दैट माइग्रेट्स टू एस्केप द कोल्ड विंटर्स ऑफ द आर्कटिक रीजन. आपको पता है आर्कटिक टर्न आपकी एक माइग्रेटरी बर्ड है जो माइग्रेट होती है आर्कटिक रीजन से वहाँ की कोल्ड विंटर्स से एस्केप करने के लिए. Displacement. Development projects such as the construction of Sardar Sarovar Dam in Gujarat may lead to the large-scale displacement, force shifting of people, construction of factories, building dams,
Flyovers, roads, as well as natural calamities such as earthquakes, floods, cyclones and tsunamis result in displacing families and shifting homes. अब इसके अलावा जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में बन रहा है, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका वहाँ से लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि लोगों को वहाँ से शिफ्ट कराया जाएगा फोर्सफुली। तो कोई कंस्ट्रक्शन होता है आपका फैक्ट्रीज का, बिल्डिंग्स का, डैम्स का, फ्लाईओवर्स का, नेचुरल कैलमिटीज़ है जैसे अर्थक्वेक्स, सुनामीज, इनकी वजह से भी जो लोग हैं उनको अपने घर शिफ्ट करने पड़ते हैं। Let's review. The movement of people from one place to another is called migration. Remember that the people who migrate are called migrants. जो लोग माइग्रेट करते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स का मतलब है वो लोग जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं। These immigrants are called immigrants in the country where they settle. और इन एमिग्रेंट्स को इमिग्रेंट्स कहा जाता है जिस कंट्री में वो सेटल होते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।